everyone, how you all are? I hope you all are fine. In our previous video, we have studied about the integrated rate equation for zero order. Now in this video, we will study about the integrated rate equation for first order. Clear? So go on. So let us consider a reaction, a general reaction that A gives product. This is our general reaction in which A is a reactant and it gives product. Now suppose at t equals to 0 second means when time is not started, means when reaction is not started. जब हमारी reaction start नहीं हुई, suppose the initial concentration of A be A. हमारा जो initial concentration है that is A. तो product कितना होगा? 0. Because reaction start नहीं हुई means no reactant get converted into product, therefore the concentration of product becomes 0. Then suppose at t equals to t second, anytime t equals to t second, suppose x amount of reactant get converted into product. x amount product में convert हो चुका है. Then the concentration of reactant becomes A minus x because initial concentration A था, x अभी convert हो चुका है, तो now the concentration becomes A minus x and the concentration of the product becomes x. Clear? Now according to rate law, अगर हम rate law की बात करें तो rate of the reaction is either change in the concentration of the product, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं dx by dt. Now what is x? X is the product form or the amount of reactant which is reduced to convert into product. Clear? Is directly proportional to concentration of reactant that is A minus x. जो rate of the reaction है वो किसके directly proportional है? Concentration of reactant के, जो कि कितना है? A minus x. Now जब हम इसे solve करेंगे it becomes dx by dt is equals to k into A minus x, where k we known as it is a rate constant which is also known as specific reaction rate. Clear? Now on rearranging, अगर हम इस equation को rearrange करें, what we get? dx divided by A minus x is equals to k into dt. हमने इसे rearrange क्यों किया? Because यहाँ पे आपका concentration term था divided by time term and here we have concentration term. तो हम जो concentration term थे उसको एक साइड ले आए, यानी this is the concentration term and this one is also the concentration term. So dx upon A minus x is equals to k into dt. Now from this equation it is nearly difficult to calculate the rate constant or the concentration of the reactant. So what we will do? We will do the integration. इस रिएक्शन से एग्जैक्ट वैल्यू रेट कांस्टेंट की फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है, तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन निकालेंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू dt. नाउ हमने पहले भी पढ़ा दैट इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट रिमेन द सेम, यानी इंटीग्रेशन हम किसी भी कांस्टेंट का करते नहीं है, वो पहले एज इट इज बाहर आ जाता है. Clear? So यहाँ पे k is a constant. So in our next equation it becomes integration of dx upon a minus x is equals to k into integration of dt. Now previous video में हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, that integration of dx is equals to x. Clear? Now अब यहाँ पे क्या है आपका? integration of dx upon a minus x. Clear? Here is integration of dx upon a minus x. तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या लगेगा? minus ln of a minus x. Clear? Is equals to, now again it is integration of dx, so k into t plus, just as the previous video, we'll add here a constant which is known as integration constant that we termed as I. So ये हमारी first equation बनी है of integrated rate equation. Clear? Now suppose at time t, at time 0 second, जब 0 सेकेंड था तो ये x हमारा कितना था? 0.
Clear? So x becomes 0. Now if we put the value of t here and if we put the value of x here, what we get? We get minus ln of a is equals to I. Clear? ये हो जाएगा आपका 0, so it becomes minus ln a. This is 0, k into 0, that is also equals to 0, so minus ln of a equals to I. So if we put the value of I in this equation, what we get? We get minus ln a minus x is equals to kt minus ln of a. Now on rearranging, what we get? Kt equals to ln of a minus ln a minus x. Clear? So kt is equals to ln. Now here we applied one formula that ln m minus ln n is equals to ln m divided by n. We applied one formula that ln of m minus ln of n. M or n may be anything. Here it is a and a minus x. m और n कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे a है, m की जगह पे a है और n की जगह पे a minus x है. Now जब ये फॉर्मूला आएगा, it becomes ln m divided by n. Clear? And जब फॉर्मूला आएगा आपका ln m plus ln n, then हम क्या लिखेंगे? ln m into n. Clear? So यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ln a divided by a minus x. Now this is ln. Now what is ln? ln is actually log to the base e. Clear? But the log table which we have, in that we have the value of log to the base 10. यानी हमने इस log to the base e को किस में कन्वर्ट करना है? log to the base 10 में कन्वर्ट करना है. और log to the base 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? by 2.303, which we have studied in 11th class. That is kt is equals to 2.303 log a divided by a minus x. अभी तक ये ln था, because what is ln? ln equals to log to the base e. अब ये क्या हो गया? log. Why it is log? इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है. वो क्या है? यहाँ पे जो log है that is उसका बेस e है, ठीक है, एनी एक्सपोनेंट, और इसका बेस क्या है? 10 है. So 2.303 log a upon a minus x. So k equals to क्या हो जाएगा? 2.303 upon t log a upon a minus x. Now what is a? A is the initial concentration of the reactant, and what is a minus x? A minus x is the final concentration of the reactant. So this equation is the integrated rate equation for first order reaction, in which k equals to 2.303 divided by t log a divided by a minus x, or log initial concentration of the reactant divided by final concentration of the reactant. Suppose if the reactants and products are present in gaseous form, then what will be the integrated rate equation? Suppose let us consider a reaction A in the gaseous form. It reacts to give B, which is also in the gaseous form, plus C, which is also in the gaseous form. Means reactant as well as the product all are present in gaseous form. Now हमें पहले भी पता है when the reactant and products are present in gaseous form, we will consider their pressure in place of molar concentration. हम मोलर कंसेंट्रेशन की जगह पे क्या फाइंड आउट करते हैं? प्रेशर फाइंड आउट करते हैं. नाउ सपोज एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, इनिशियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट भी P नॉट. ठीक है, इनिशियल प्रेशर हमारा क्या है? P नॉट. प्रोडक्ट का क्या होगा? 0, बिकॉज रिएक्टेंट अभी तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं. सो ओनली जो प्रेशर होगा दैट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू रिएक्टेंट. नाउ सपोज t इक्वल्स टू t सेकेंड. Suppose P amount of pressure is reduced. P amount of pressure reduced हो गया. So the pressure becomes P naught minus P. और इसमें भी कितना बनेगा? P. इसमें भी कितना बनेगा? P. Clear? Now इससे पहले जब हमने rate of the reaction for first order derive किया, उसमें हमने देखा that K equals to 1 upon T 2.303 initial concentration divided by final concentration.
ठीक है, सो यहाँ पे भी वही आएगी इक्वेशन दैट इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर, बट वी हैव टू कैलकुलेट हियर फाइनल प्रेशर बिकॉज फाइनल जो हमें मोल्स मिलेंगे वो ए के भी मिलेंगे, बी के भी मिलेंगे और सी के भी मिलेंगे। इनका प्रेशर होगा पी नॉट माइनस पी, बी का प्रेशर होगा पी, सी का प्रेशर होगा पी और टोटल प्रेशर ये होगा, बट वी हैव टू कैलकुलेट ओनली दिस क्वांटिटी। क्लियर? सो टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी सेकेंड वो क्या होगा, पी नॉट माइनस पी प्लस पी प्लस पी। ठीक है, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, सो प्रेशर बिकम्स पी नॉट प्लस पी। सो पी क्या हो जाएगा, पी टी माइनस पी नॉट। जो ये पी है दैट इज दिस पी, इट बिकम्स पी टी माइनस पी नॉट। नाउ जब हम इसे इस इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट, पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट मीन्स 2p नॉट माइनस पी टी। क्लियर? यानी जो फाइनल प्रेशर है जस्ट बिकॉज ऑफ ए वो कितना है, 2p नॉट माइनस पी टी। नाउ विल पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन दैट k इक्वल्स टू 2.303 divided by t log initial pressure that is P naught divided by final pressure that is 2P naught minus PT. So in this way we can able to find out the integrated rate equation for first order when the reactants and products are present in gaseous form. Clear? Now we'll calculate the half-life period for first order. In our previous video, we studied that what is half-life. Half-life is the time period when half of the concentration, half of the initial concentration of the reactant reacts to give product. यानी हाफ लाइफ किसी भी रिएक्शन का वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में हाफ ऑफ द रिएक्टेंट यानी 50% ऑफ द रिएक्टेंट जो होता है वो रिएक्ट होके किसमें कन्वर्ट हो चुका होता है, प्रोडक्ट में। So in this also we have to calculate the half-life period for first order. Now again if we recall the first order integrated rate equation, what is this? K equals to T 2.303 divided by T log initial concentration that is A, final concentration that is A minus X. ये थी हमारी। Now अब हम because half life period find out कर रहे हैं तो T हमारा क्या हो जाएगा, T becomes T half। और अगर आपका T बिकम T हाफ हो जाएगा तो जो कंसेंट्रेशन है वो क्या हो चुका है, हमारा हाफ डिसोशिएट हो चुका है, हाफ कन्वर्ट हो चुका है। इट मींस X इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल कंसेंट्रेशन मेरा A था और हाफ मेरा कन्वर्ट हो चुका है तो X क्या हो जाएगा, A बाई 2। क्लियर? नाउ इन दोनों की वैल्यू को जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे व्हाट विल बी द इक्वेशन, K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय T, T बिकम्स T half log A divided by A minus A by 2. Clear? Now on solving this what we get? We get log 2 because इसको solve करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A divided by 2, A and A cancel, so 2 यहाँ जाएगा so it becomes log 2. So what we get? We get K equals to 2.303 divided by T half log 2. Clear? And on finding the value of log 2 from the log table, what we get? We get 0.3010। हमें जो वैल्यू मिलेगी लॉग टेबल से log 2 की वो वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.3010। And on multiplying these two value, what we get? We get 0.693 divided by T half. Clear? So K equals to 0.693 divided by T half. So we are calculating half life period और half life period actually में time period है तो हमें K find out नहीं करना है, हमें T half find out करना है। So the equation becomes T half equals to 0.693 upon K. Now in जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने देखा था कि जो T हाफ था इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बट इन फर्स्ट ऑर्डर T half doesn't react on the initial concentration of the reactant. और one more interesting fact is आप कोई भी टाइम पीरियड निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो वो इनिशियल कंसेंट्रेशन पे कभी भी डिपेंड
नहीं करेगा। क्लियर? नाउ we'll find out the expression of rate constant for the first order at two different times. हम अब क्या फाइंड आउट करेंगे? रेट कांस्टेंट के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे जो कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही है, लेकिन टू डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के लिए। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, k इक्वल्स टू क्या है? k इक्वल्स टू 1/t ln इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसेंट्रेशन। अभी जो ये ln है, ये क्या बताया था? दैट दिस ln इज एक्चुअली log टू द बेस e। ठीक है, नाउ ऑन रीअरेंजिंग में हमें ये क्या मिलेगा? kt इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस ln a। ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था। दिस इज ln m अपॉन n। ln m अपॉन m, n बिकम्स ln m माइनस ln n। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि ln m माइनस ln n होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ln m अपॉन n में। अब हम पढ़ रहे हैं कि उसी का जस्ट उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ दैट ln m अपॉन n इक्वल्स टू ln m माइनस ln n। क्लियर? नाउ ln a क्या हो जाएगा? ln a इक्वल्स टू माइनस kt प्लस ln ऑफ a नॉट। ये हमारा आ जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक है, नाउ सपोज लेट t बिकम्स t1, और जब t1 था हमारा जो कंसंट्रेशन था, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन तो चेंज होगा नहीं, इनिशियल कंसंट्रेशन जो था, इनिशियल कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन वो ही रहेगा, बट फाइनल कंसंट्रेशन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में क्या होगा? डिफरेंट। सो a बिकम्स सपोज a1, और एट टाइम t इक्वल्स टू t2 a बिकम्स a2। ये हमने सपोज किया। देन हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ln ऑफ a1 इज इक्वल्स टू माइनस kt1 प्लस ln ऑफ a नॉट, और सेकेंड बिकम्स ln a2 इज इक्वल्स टू माइनस kt2 प्लस ln a नॉट। क्लियर? हमारे पास ये दो इक्वेशन आ जाएंगी। नाउ जब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे, व्हाट वी गेट ln ऑफ a2 माइनस ln ऑफ a1 इज इक्वल्स टू, इसको इससे माइनस किया, यानी लेफ्ट हैंड साइड पहले माइनस हुआ, अब राइट हैंड साइड माइनस होगा, माइनस kt2 प्लस ln a नॉट माइनस, अब इस वाले को सॉल्व करने से पहले हम इसे किसमें लिख लेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस kt1 प्लस ln ऑफ a नॉट। क्लियर? नाउ ऑन सॉल्विंग, ln ऑफ a2 माइनस ln ऑफ a1 इज इक्वल्स टू माइनस kt2 प्लस ln ऑफ a नॉट। नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ln प्लस k इंटू t1 प्लस माइनस ln ऑफ a नॉट। नाउ मैंने पहले भी आप लोगों से कहा दैट द इनिशियल कंसेंट्रेशन रिमेन सेम, सो लॉग भी क्या रहेगा? सेम। लॉग सेम रहेगा तो ये और ये आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल। सो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी? द न्यू इक्वेशन बिकम्स ln a2 माइनस ln a1। ये क्या हो जाएगा? ln a2 डिवाइडेड बाय ln a1। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये दिस वन एंड दिस वन बिकम्स कैंसिल, सो यहां पे क्या बचेगा? kt1 विच इज इन प्लस माइनस kt2। क्लियर? सो यहां पे क्या आ जाएगा? ये ln ऑफ a2 डिवाइडेड बाय a1 इज इक्वल्स टू k इंटू t1 माइनस t2। क्लियर? सो k बिकम्स 1 अपॉन t1 माइनस t2 ln ऑफ a2 डिवाइडेड बाय a1। ठीक है, एंड जब हम इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, व्हाट विल बी आवर इक्वेशन? आवर इक्वेशन बिकम्स 2.303 अपॉन t1 माइनस t2 log कंसेंट्रेशन ऑफ a2 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ a1। ठीक है, सो दिस इज द रेट एक्सप्रेशन जब हम दो डिफरेंट टाइम पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे ये माइनस ये,
यानी सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन ना करें, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन करें, सो यहाँ पे हमारी टर्म्स क्या हो जाएंगे, चेंज, यानी T2 माइनस T1 and log A1 divided by E2. So both are same. Clear? We will study the graphs which we draw for first order reaction. Now, first graph is between log A and T. जो first graph है हमारा वो log A यानी initial concentration के log और T के बीच में, और जो second graph है हमारा वो है log A0 upon A और time के बीच में. Clear? नाउ ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर, दैट K 2.303 T इक्वल्स टू लॉग A0 डिवाइडेड बाई A, जो हमने थोड़ी सी मॉडिफाइड की है, बिकॉज व्हाट इज द रिएक्शन, रिएक्शन इज K इक्वल्स टू T अपॉन 2.303 लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन, तो हमने उसको मॉडिफाई किया. क्लियर? नाउ इस इक्वेशन को जब हमने इस फॉर्म में अरेंज किया, हेयर इज लॉग A दिस एंड हेयर इज T. क्लियर? नाउ यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक इक्वेशन यानी लीनियर ग्राफ इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट y इक्वल्स टू mx प्लस c. ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस c. क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो y एंड x है वो वेरिएबल है, y एंड x सेम, y इज a दैट इज द फाइनल कंसेंट्रेशन, टाइम टू टाइम वो चेंज हो रहा है, और x इज टाइम जो कि चेंज हो रहा है, मीन्स आफ्टर 10 सेकेंड कंसेंट्रेशन कुछ और होगा, 20 सेकेंड के बाद कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, but initial concentration remains same, K remains same, 2.303 remain same. So ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. तो कैसा ग्राफ बनेगा हमारा, स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पे जो हमारा स्लोप होगा दैट इज माइनस K अपॉन 2.303. सो बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन जो ग्राफ बनेगा हमारा वो कैसा ग्राफ बनेगा, इनवर्स ग्राफ. एंड देयर इज वन मोर टर्म दैट इज log A0 एंड log A0 इज आवर इंटरसेप्ट. यानी इस ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें किसकी वैल्यू बताएगा, माइनस के 2.303 की वैल्यू, और इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें किसके थ्रू पता चलेगी, log A0 की, और log A0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो आपके A0 की वैल्यू होगी उसका जब log निकालेंगे दैट इज द वैल्यू फॉर आवर इंटरसेप्ट, वो हमारे इंटरसेप्ट की वैल्यू बताएगी. नाउ इस इक्वेशन में अगर हम log A0 डिवाइडेड बाई A एंड टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, now it is K upon 2.303. ठीक है, now this quantity is variable, ये quantity variable है क्योंकि बार बार A वेरी करेगा. In this quantity this is non variable but this is variable for a particular reaction, एक reaction के लिए. ठीक है, K वेरी नहीं करेगा लेकिन टाइम वेरी करेगा, प्लस यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं है. क्लियर? यानी here the intercept is 0. So यहाँ पे जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द ओरिजिन, बिकॉज इंटरसेप्ट इज 0. ठीक है, ग्राफ यहां से ओरिजिन होगा, और जो इस ग्राफ का स्लोप है वो हमें किसकी वैल्यू बताएगा, K अपॉन 2.303 की. यानी विद द हेल्प ऑफ द स्लोप वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K. हम K की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड बिकॉज इंटरसेप्ट 0 है तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ को शो कर रहा है, तो ये ग्राफ भी कैसा होगा हमारा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ. सो ये एक्सप्लेनेशन है हमारे ग्राफ्स की, जो हम किसके लिए यूज करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए. क्लियर? At the last of this video, we'll discuss about some interesting fact about first order reaction. Amount of substance left after n half-lives. ठीक है, amount of the substance left after n half-life. जैसे हमारी first half-life है, हम कहते हैं half of the reaction हो गई. half of the reaction के बाद हमारा जो amount है कितना बचा होगा, initial concentration divided by 2. ठीक है, नाउ सपोज उसके बाद जब रिएक्शन आगे प्रोसीड हुई, हमने कहा फर्दर हाफ लाइफ पूरी हो गई. नाउ फर्दर हाफ लाइफ कहने का मतलब जो इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 कंसेंट्रेशन बचा था उसका हाफ कंप्लीट हो गया. इट मीन्स क्या हो जाएगा, A0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, यानी A0 डिवाइडेड बाय 4. सो इस वे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आफ्टर 6 हाफ लाइफ आपका जो कंसेंट्रेशन है वो कितना बचेगा, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, A0 डिवाइडेड बाय 2n, जहां पे n क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाफ लाइफ के लिए 1, सेकेंड हाफ लाइफ के लिए 2, थर्ड हाफ लाइफ के लिए 3, फोर्थ हाफ लाइफ के लिए 4 एंड सो ऑन. सो सिक्स्थ हाफ लाइफ के लिए क्या हो जाएगी इक्वेशन, A0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6. सो इन दिस वे इस फॉर्मूले से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ, वट एवर हाफ लाइफ.
नाउ सेकेंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डैश कंप्लीटेड. क्लियर? यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को मैंने दिया है ना, इसको हमने कंप्लीट करना है. हमें पता है दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग कंसेंट्रेशन इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल. ठीक है. नाउ जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट मींस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम 0. ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारा 0 हो गया बिकॉज द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, ऑल द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. सो K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 0. नाउ log 0 मीन्स इनफाइनाइट, यानी ये जो टर्म है ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगा? इनफाइनाइट को. यानी आपका जो इनिशियल, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो इनफाइनाइट, उसका कंप्लीट जब वो रिएक्शन हो रही है तो K की वैल्यू क्या आ रही है? इनफाइनाइट, विच इज नॉट पॉसिबल. सो यहाँ पे क्या आएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज नेवर कंप्लीटेड. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है, यानी जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो 99.9 निकलेगा. K की वैल्यू 99.9% तक भी निकलेगी, लेकिन 100% पे नहीं निकलेगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीटली कवर नहीं होती है. क्लियर? सो ये दो क्वेश्चंस हैं जिनको हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में थोड़ा डीपली पढ़ना है. क्लियर? So guys, that's all for today. I hope you enjoy the chemistry. If you have any query, any question related to today's topic, give your question in the comment section. I'll definitely reply. Thank you. Stay healthy, stay safe.